हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਐਂਗਲ ਏ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਆ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਏ ਬੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ 90 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਏ ਬੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਬੈਂਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਨੋਰਮਲ। ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਪਾਥ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਿਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, DEO-H ਇਹ ਪਾਥ ਇਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ, ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਨੋਰਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਨੋਰਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ R1। ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ ਏ ਬੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ Δ1। ਇਹ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਆਲੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ E ਤੋਂ F ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ, F ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਲੇ ਨੋਰਮਲ ਨੂੰ O ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ F ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਲਈ AC ਲਈ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ R2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਬੜੀ ਆ ਗਈ EF, ਠੀਕ ਹੈ। EF ਆਵਲੇ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਵੱਲ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੋਰਮਲ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कहता ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ, ठीक है ना। इमरजेंट रे कहता इस रे नू, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया E। हुण देखो जे आ डिवीजन में जा गई, देखो ये इधर मुड़ गई, ठीक है ना। ये सीधी जा रही सी, इधर मुड़ गई तो ये आ डिवीजन आ गई, इनू आपां Δ2 लिखा, ठीक है, Δ2। सो Δ1 ते Δ2 आ एंगल्स हो गए दोनों, ठीक है। तो आ एंगल हो गया R2 जिहड़ा आपां एंगल ऑफ रीफ्रैक्शन लिता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसीडेंस है सैकेंड सरफेस ਲਈ, एंगल ऑफ रीफ्रैक्शन ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ ਆਲੇ ਸਰਫੇਸ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ ਆਵਲੀ EF, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ R2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੋਰਮਲ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ O' ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ O' ਤੇ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਦਾ ਜੇ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦਾ ਪਾਥ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ O' ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੜੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ O'-EF ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ Δ1 + Δ2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ O'-EF ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ O ਹੈ, ਇਹ O' ਹੈ, ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੈਲਟਾ प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू इंसीडेंट, एंगल ऑफ इंसीडेंट ते एंगल ऑफ इमरजेंस, इन्हां दोनों के बराबर है। सो डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ये आपां प्रूव करना है इस पर्टिकुलर केस दे विच, ठीक है।
हाँ जी देखो इस पर्टिकुलर एंगल में देखो एंगल ऑफ इंसीडेंस आई नू आई दे सामने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनता पे वाला सारा इस एंगल की वैल्यू कितनी R1 प्लस डेल्टा वन सो आई जड़ा है देखो आई इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा वन बन गया ठीक है आ एंगल डेल्टा वन है ना R1 है उस तरह इतने देखो आ इमरजेंट रह गई इतने क्रॉस लग रहा देखो आ क्रॉस लग रहा आ एंगल ई हो गया तो आ उहदे सामने एंगल बराबर हो गया डेल्टा टू प्लस R2 ठीक है ये R2 है तो डेल्टा टू प्लस R2 ये ई इक्वल टू डेल्टा टू प्लस R2 सो R2 प्लस डेल्टा टू लिखना ठीक है हुण आ देखो ट्रायंगल O डैश ई एफ दे विच O डैश ई एफ इन ट्रायंगल O डैश ई एफ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा ठीक है ये एक्सटीरियर एंगल है जो हम इन्होंने दोनों आप जोड़ लेंगे अपने को आई तो ई की वैल्यू कितनी बन गई प्लस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू की वैल्यू डेल्टा आ गई है सो आई प्लस ई की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा आ गई ठीक है ये वैल्यू हम अपने को आ गई हुण देखो आप इस क्वाड्रिलेटरल की गल करिए AEOF ठीक है ये आप प्रूव करना है ठीक है हुण AEOF इहदे ध्यान दिओ इहदे च देखो की है ये चार कौन हो गए एंगल ए प्लस एंगल AEO प्लस एंगल EOF ठीक है ते प्लस OFA ठीक है इन्होंने चारों जोड़ कितना आ जाएगा 360 ठीक है ना क्वाड्रिलेटर के चारे कौन ने इन्हों का जोड़ 360 डिग्री आ जाएगा हमने देखो आ 90 है तो आ भी 90 है ठीक है आ 90 है तो आ भी 90 है दोनों एंगल जोड़े है आवला कौन ठीक है एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल EOF प्लस OFA आ देखो OFA आला कौन हो गया ठीक है ये भी 90 का होएगा ठीक है क्योंकि नॉर्मल है नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाती ये भी 90 हो गया इक्वल टू 360 डिग्री आ गया सो 90 प्लस 90 180 आ गया एंगल ए प्लस एंगल EOF प्लस 180 इज इक्वल टू 360 180 उधर चला जाएगा एंगल ए प्लस एंगल EOF इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा 180 उधर जाके माइनस हो गया ठीक है हुण देखो अपने को जो आ एंगल है इनकी वैल्यू आई है अपने को EOF हुण ट्रायंगल EOF देखो तुसीं ध्यान नाल ट्रायंगल EOF इहदे तीन कौन ने किहड़े किहड़े देखो एंगल R1 प्लस एंगल EOF प्लस एंगल R2 ठीक है इत्थे R1 R2 सीधे लिख दो एंगल लिखने की लोड़ नहीं आपां उन्हां नूं ठीक है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री ये 180 डिग्री के बराबर है ठीक है हम देखो आ भी 180 है तो आ भी 180 है इसका मतलब आ लैफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी सो एंगल ए प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू R1 प्लस एंगल EOF प्लस R2 EOF कैंसल हो जाएगा दोनों पासे तो एंगल ए की वैल्यू कितने बराबर आ गई R1 प्लस R2 ठीक है सो एंगल ए की वैल्यू जी है R1 प्लस R2 आ हुण R1 प्लस R2 आप इत्थे पुट कर दईए तो अपने को आ गया देखो इस इक्वेशन पुट करते हैं आप तो अपने को इनू नंबर 1 दे दो इक्वेशन नंबर 2 दे दो पुट 2 इन 1 पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 ठीक है तो अपने को R1 प्लस R2 था तो ए आ जाएगा तो अपने को I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा देखो यही आप प्रूव करना सीगा I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा ठीक है सो ये अपनी जी है सॉल्व हो गया कि आ एंगल प्लस
एंगल ऑफ डिवीएशन, ठीक है ना, ये डिवीएशन है। डिवीएशन क्यों हुई कि जे इंसीडेंट रे सीधी चली जाती तो इस पास से जानी सी, हुण क्योंकि ये प्रिज्म के थ्रू लंघी है तो इमरजेंट रे जी इस पासे आ रही है, तो आ डिवीएशन हुई इन्होंने आ एंगल, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डिवीएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसीडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ये आप प्रूव करता इस पर्टिकुलर केस दे विच। अब देखो आप कंडीशन फॉर मिनिमम डिवीएशन की गल करांगे। कंडीशन फॉर मिनिमम डिवीएशन देखो की चीज़ है। और देखो इस पर्टिकुलर केस के विच जो इंसीडेंट रे आती है, इंसीडेंट रे किसी भी एंगल से आ सकती है, एंगल इनके बदल सकते हैं, ठीक है ना, एंगल इनका चेंज कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होएगा जिथे डिवीएशन जी डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होएगी, ठीक है। वो देखो उनके लिए आप ग्राफ बनाया कि डेल्टा तो एंगल ऑफ इंसीडेंस के विच, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसीडेंस कितना हो कि डेल्टा मिनिमम हो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती, देखो नहीं तो आ ग्राफ बनया, ठीक है। मतलब कहने का देखो इस एंगल के पिछे पिछे आप रखिए, ठीक है ना, इस एंगल जो एंगल ऑफ इंसीडेंस इस रेंज जो रहा है तो डेल्टा की वैल्यू इस तरह जी है वो घट रही है, ठीक है। फिर एंगल ऑफ इंसीडेंस इन्नी वैल्यू तो जो बढ़ जाता है फिर डेल्टा की वैल्यू जी बढ़ रही है। सो एक पर्टिकुलर वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू आएगी डेल्टा की, जिन्होंने आप डेल्टा एम कहांगे। एंगल ऑफ मिनिमम डिवीएशन उस पर्टिकुलर एंगल ते आई ते ई बराबर होंगे, मतलब आ ते आ बराबर होंगे, ये आप प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होंगे व्हेन डेल्टा इज मिनिमम, ठीक है। और देखो मिनिमम डिवीएशन पोजीशन दे विच एक आप केस इत्थे ध्यान नाल देखना, जो भी डिवीएशन मिनिमम होएगी ना आ जी रे है ना, ये रे इनके पैरेलल होंदी है, ठीक है। तो इत्थे अपने को R1 ते R2 भी बराबर होंगे है उस पर्टिकुलर केस दे विच। इस चीज़ का आप ख्याल रखना है कि फॉर मिनिमम डिवीएशन जो आ एंगल ते आ एंगल ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। हुण देखो आप एक कंडीशन सॉल्व करांगे कि फॉर मिनिमम डिवीएशन I इज इक्वल टू E, ठीक है। हुण देखो आप स्नेल्स ला की वरतों करिए तो इस पर्टिकुलर फेस से साइन I और साइन R1 इज इक्वल टू MGA आ जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर तो ग्लास वाल आई, ठीक है। हुण इस पर्टिकुलर केस के अगे देखो अगे आप चलीए तो इत्थों जो इमरजेंट रे बाहर आ रही है ग्लास तो एयर वाल आ रही वापस, तो आप कहवांगे साइन R2, क्योंकि एंगल ऑफ इंसीडेंस R2 है आ वाला, ठीक है ना, आ एंगल है इतना आ एंगल है, ठीक है। साइन R2 बटा साइन E इज इक्वल टू NAG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। वो ये वैल्यू हो जाएगी। हुण अपन पता है कि एन इन रेसिप्रोकल करिए तो की बनेगा साइन E बटा साइन R2 इज इक्वल टू 1/NAG हो जाएगा। तो अपन पता है इनका रेसिप्रोकल की बनेगा NGA, ठीक है। अगे भी आप आ चीज़ आप की है कि NAG इज इक्वल टू 1/NGA, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेसिप्रोकल हो जाता है जो आप विद रिस्पेक्ट टू चेंज करते हैं, तो इतने अपने को आ जाएगा साइन E ओवर साइन R2 इज इक्वल टू NGA, ठीक है। NGA आ गया। आ देखो आ इक्वेशन ते आ इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों च NGA, इधर भी NGA आ गया, इनका मतलब आ भी बराबर हो गया, ठीक है। सो इन्होंने दोनों तो आप लिखांगे साइन I ओवर साइन R1 इज इक्वल टू साइन E ओवर साइन R2, ठीक है। ਹੁਣ देखो मिनिमम डिवीजन पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ R1 R2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ I ਜਿਹੜਾ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। देयरफॉर ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ if R1 is equal to R2 and I is equal to E, ठीक है। सो आ अपने को कंडीशन आ गई मिनिमम डिवीजन की कि R1 R2 के बराबर हो गया, मतलब आ रे पैरेलल होगी बेस ते I ते E बराबर हो गए, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर केस के वैल्यू आ। हाँ जी देखो आप हम प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करना है।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ I plus E is equal to A plus delta। ठीक है, फिर आप क्या जरा एंगल ऑफ प्रिज्म है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। ठीक है, हुण देखो इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, मतलब जो एंगल ऑफ डिवीजन है वो मिनिमम डिवीजन पोजीशन पे है, then अपने को की आ जाता है R1 इक्वल टू R2 आ जाता है। ठीक है ना, इनू मान लो ये R के बराबर है। ठीक है, ये मान लो R के बराबर है तो I इक्वल टू E के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये बराबर है। हुण इस पर्टिकुलर केस के विच आपां R1 ते R2 नूं R लिखीए तो इस इक्वेशन का की बन जाएगा, आ इत्थे पुट करिए तो की बनता देखो A इज इक्वल टू R प्लस R आ जाएगा। सो A इक्वल टू 2R आ गया तो R की वैल्यू अपने को आ गई A/2। ठीक है, R की वैल्यू A/2 आ गई अपने को। फर्दर देखो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, तो जो आप डेल्टा M लिख रहे हैं तो I तो E बराबर हो जाएंगे, वो I प्लस I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M हो गया। ठीक है, ये 2I हो गया इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, तो I की वैल्यू कितनी होगी A प्लस डेल्टा M/2, आ वैल्यू दी होगी। ठीक है, ये I की वैल्यू अपने को आ गई A प्लस डेल्टा M/2। R की वैल्यू अपने को लगी है I की हैगी है। और इस फेस से स्नेल्स ला आप लगाइए तो आप की कहेंगे साइन I ओवर साइन R1 इज इक्वल टू NGA। NGA नूं आपां N भी कला लिख सकते, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखना है, उन्होंने कला N भी आप लिख सकते। ठीक है, हुण इत्थे R1 जिहड़ा है वो क्योंकि आप कंडीशन लगाई है कि मिनिमम डिवीजन पोजीशन, तो R1 की वैल्यू R लिखती तो ये अपने को की बन जाएगा साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू N। हुण I ते R की वैल्यू इत्थे पुट करिए तो अपने को की बन जाएगा देखो साइन I, ये की बन गया देखो साइन A प्लस डेल्टा M/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन A/2, R की वैल्यू A/2 है। ठीक है, सो ये आ गया N की वैल्यू, सो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल। ठीक है, सो N नूं आपां की लिख लांगे, देखो N इक्वल टू की आ गया अपने को साइन A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ठीक है, सो ये आ गया प्रिज्म फार्मूला, दिस इज प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आप कैलकुलेट करने लिए जो फार्मूला ड्राइव किया उन्होंने कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। हुण देखो जे आ एंगल जिहड़ा है ये छोटा है, ठीक है ना, ये एंगल जो छोटा है प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल, उस पर्टिकुलर केस दे विच इफ ए इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, ए जो बहुत स्मॉल है उस पर्टिकुलर केस दे विच तुसीं देखो की होएगा, आपां साइन थीटा इक्वल टू उदों आपां की कहने, देखो उदों आपां कहने जे एंगल छोटा होवे ते एंगल होवे इहदे विच रेडियंस दे विच। ठीक है ना, साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा होंदा है। ठीक है, सो जो ए स्मॉल है सो डेल्टा एम तो डिवीजन भी स्मॉल होएगी उस पर्टिकुलर केस दे विच, क्योंकि मिनिमम डिवीजन है, ये सारा एंगल छोटा जो होएगा तो आप कह देंगे n इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा M/2 डिवाइड बाय A/2। ठीक है, उदों आ पर्टिकुलर केस बन जाएगा। सो ये पर्टिकुलर केस दे विच तुसीं देखो इहदे विच तुसीं ध्यान नाल देखो, हुण आपां इहदी n की वैल्यू आपां कड्डांगे, इत्थे देखो की बनती है n इज इक्वल टू
ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 है गुणा 2 बाय ए आ गया। ठीक है, 2 बाय ए आ गया, ये 2 कैंसल हो गया तो अपने को आ गया एन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय ए आप उधर ले जाने। ठीक है, तो ये बन गया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। इधर ले आओ, ए एन माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम, ए कॉमन कर लो तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एम। सो मिनिमम डिवीजन जी एंगल है डेल्टा एम की वैल्यू अपने को ए आ जाएगी वो इस पर्टिकुलर केस से इफ ए इज़ वेरी स्मॉल, जो ए बहुत घट है, छोटा जहा एंगल है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा छोटा है, उस पर्टिकुलर केस एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन पोजीशन कितना आ जाएगा ए एन माइनस 1। ठीक है, ये डेल्टा एम की वैल्यू अपने को आ गई ए ते एन के टर्म्स के विच। हम देखो न्यूमेरिकल है नाम का a ray of light passes through a glass prism such that I equal to E। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर देते हुए हैं। इफ एंगल ऑफ इमरजेंस इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, मतलब जेड़ा ई है वो 3/4 ए के बराबर है। ठीक है, तो अपने कोल आई ते ई बराबर दिते हुए है, एक भी कंडीशन है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिवीजन, मतलब डेल्टा कैलकुलेट करना है आप। ठीक है, वैन एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए की वैल्यू 30 डिग्री है, ए की वैल्यू 30 डिग्री दी है तो अपने को डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करना है। तो देखो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ये आप कैलकुलेट किया। ठीक है, आई तो ई बराबर है, इसका मतलब अपने को ये दोनों बराबर है तो आप लिख देंगे आई प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ये 30 डिग्री दिता है। ठीक है, ये 30 डिग्री दिता है तो इतने देखो ई जी वैल्यू है आई था तो ई लिख देंगे आप। ठीक है ना, ई लिख देंगे दोनों वाली ई प्लस ई लिख देंगे क्योंकि इतने आई ई के बराबर है तो ई 4/3 ए के बराबर है। ठीक है, ए 30 डिग्री है तो इतने 2e हो गया इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस डेल्टा। ई की वैल्यू आप 3/4 ए लिखिए, सो 2 × 3/4 ए की वैल्यू 30 है, ये बराबर आ गया 30 प्लस डेल्टा। ठीक है, सो अब 4 जो कटिया गया ये आ गया अपने को 2 कटिया गया ये आ गया 15, ये आ गया 15 × 45 इक्वल टू 30 प्लस डेल्टा, तो 30 उधर चला जाएगा, डेल्टा की वैल्यू आ गई 45 माइनस 5। ठीक है, ये आ गई 15 डिग्री। ठीक है, सो 15 डिग्री जी है एंगल ऑफ डिवीजन आ गया। फिर समझ लो अपने को ई की वैल्यू 3/4 ए दी है, आई तो ई बराबर ने, डेल्टा पता करना जो ए की वैल्यू 30 डिग्री है, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होता है, आई था तो ई पुट करता ई प्लस ई इक्वल टू 30 प्लस डेल्टा, ए 2 इक्वल टू 30 प्लस डेल्टा, ई की वैल्यू आप पुट करती 4/3 ए की वैल्यू 30 लगती तो अपने को डेल्टा की वैल्यू जी है 15 डिग्री आ गई। और देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए थिन प्रिज्म ऑफ 2 डिग्री एंगल गिव्स अ डिवीजन ऑफ 1 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री दिता है, डिवीजन मतलब डेल्टा की वैल्यू 1 डिग्री दी है। वट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ प्रिज्म। तो देखो ये 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है, उस पर्टिकुलर केस के विच अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जी है वो की आ जाती है, या आप मिनिमम डिवीजन एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की डेल्टा इज इक्वल टू n-1 ए किया। ठीक है, सो डेल्टा इज इक्वल टू n-1 आया सीगा जो एंगल स्मॉल सीगा एंगल ऑफ प्रिज्म का। इतने ए की वैल्यू जी है वो 2 डिग्री है। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू 1 डिग्री है तो आप एन कैलकुलेट करना है, इतने 1 पुट कर दें, 1 इज इक्वल टू n-1 × 2, सो n-1 की वैल्यू 1/2 होगी, n-1 की वैल्यू 1/2 उधर चला जाएगा, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, सो n की वैल्यू जी है वो 1.5 होगी, 1.5 को आप 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो मटीरियल है ग्लास 1.5 आ गया उनका। ठीक है,
और देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब हो गया जिंदे तीनों एंगल जेडे है वो 60 डिग्री के हो गए, ठीक है, इक्विलैटरल एंगल बनती भी है। फिर कह रहे हैं फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन इज 60 डिग्री, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू दी 60 डिग्री तो अपने को ए की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े एंगल है। तो अपने कोल जिहड़ा प्रिज्म फार्मूला जिहड़ा है वो आ आएगा साइन आई प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2, ठीक है। सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो इतने आप सॉरी इतने ए लिखना सीगा, सो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाय ए बाई 2, ठीक है। ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म फार्मूला कैलकुलेट किया। सो इतने आप पुट करांगे एन की वैल्यू की आ जाएगी साइन 60 प्लस 60 बाई 2 डिवाइड बाय साइन 60 बाई 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ये आ गया 120 बटा 2 साइन 60 आ जाएगा तो बटा साइन 30 आ गया, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 तो एम की वैल्यू अपने को कितनी हो जाएगी फिर स्क्वायर रूट 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। सो एम की वैल्यू आ गई अपने को स्क्वायर रूट 3, एन इज इक्वल टू 1.732 आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म आ गया। हम देखो इतने क्योंकि जोड़े एंगल्स है काफ़ी बड़े ने करके आप जो पहले फार्मूला जो ड्राइव किया एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2 ए लगेगा, ठीक है ना। पिछले न्यूमेरिकल एंगल्स छोटे से 2 डिग्री 1 डिग्री उदों आप वैल्यू जी है वो आ फार्मूला आप यूज़ किया डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, ठीक है ना, उदों आप कैलकुलेट किया। सो इस पर्टिकुलर केस के अपने को ओरिजिनल फार्मूला इतने लगेगा, ठीक है। थैंक यू।